Welcome friends. Welcome again in the series of lectures class 11 and 12 physics. Till now we have studied about scalars and vector. In the last class we were discussing about unit vectors. We saw the definition of the unit vector. We described the definition of the unit vectors and its representation on a rectangular coordinate system, where we assume that I denotes the direction on the x-axis, j on the y-axis and k on the z-axis. Here x, y, z are mutually perpendicular to each other, means the angle between any two of the combination, that is the angle between x and y is 90 degree, y and z is also 90 degree and z and x is also 90 degree. So when three axes are mutually perpendicular to each other, they form a rectangular coordinate system. So if we talk about the direction on x-axis, it is represented by I. If someone says 4I, it means 4 is the value of the magnitude on the x-axis because I represents the x-axis. 5J means 5 unit on y-axis. 8K means 8 unit on z-axis. So in this way, when we have learned the basic concept of unit vector, so now we are in position to discuss the multiplication of vectors, that is the product of vectors. Let's see. So in this, so just recap, unit vector. A unit vector of magnitude equal to 1 means if vector is having magnitude 1, it is known as unit vector. Mathematically, how we defined it? When the vector is defined by its magnitude, it becomes a unit vector. It has been represented by n here. If n is a vector, when it is divided by its magnitude, means mod n, it becomes a unit vector. Unit vector is represented by the cap over the vector. We have learned it. See, same example for p. So what is, how we can write down a vector? If a vector is p, it is written by its magnitude, that is mod of p, and then multiplied by the unit vector of p, means p cap. We all have learned it. We all have learned it. This is our rectangular coordinate system. Rectangular coordinate system. Clearly I have mentioned x-axis will be represented by I, y-axis will be z, and z-axis by k. These axis, no, angle is 90 degree. A problem will solve also. So now we shall learn product of vector. Product of vectors. There are two product of vectors. Means multiplication of vector. When we talk about multiplication of vectors, there are two product. One is known as dot product. And another is cross product. Dot product is represented by this. Cross product is represented by this. If we talk about example, it will be A dot B. It will be A cross B. Now, the dot product of vectors is always a scalar. That's why it is also known as a scalar product.
but the cross product of vector is a vector, so it is also called vector product. So there are two kinds of products. One is the dot product, another is the cross product. Dot product is represented by the dot, cross is represented by cross. If A and B are two vectors, if we want to find out A, the dot product of A and B, I shall write it A dot B. In the same way, if we have to find out the cross product of the vectors, we shall write it A cross B. The dot product, the result of the dot product is always a scalar quantity. The result of the dot product is always a scalar quantity. That's why it is known as the scalar product of vectors. It is known as the vector product of the vector because the result of the cross product of two vectors, two or more than two vectors, is always a vector quantity. That's why it is also known as a vector product. So now let us consider the dot product. The dot product, if we write down dot product, the dot product of two vectors A and B is denoted as A dot B and defined as A dot B equals to mod of A, mod of B and cos theta, where theta is the angle between vector A and B. So if we have the angle between A and B, we have the magnitude of A and B, so we can define A dot B equals to mod of A, mod of B and cos theta, where theta is the angle between them. Now let's analyze what is the meaning of A, B cos theta. Suppose this is vector A and this is B. This is the angle theta. The length of this line means this to this, write down O, A, B. Here OA is represented by vector A, OB means vector B, and theta is the angle here because both the vectors are originating from here. That's why theta is the angle between vector A and vector B. Now let's consider what is this. If we just give the perpendicular from B to A, B to A. Suppose this is D. In this triangle, in triangle ODB, what is this? Cos theta equal to base means OD by hypotenuse OB means OD by mod of B, because OB is the vector B, so when we talk about its magnitude it is mod B. That's why so we can write OD equal to mod of B cos theta. Now from definition of डॉट प्रोडक्ट, जरा से यहाँ पे देखिए क्या है कि B से हम लोगों ने OA लाइन जो वेक्टर A है
उस पर एक परपेंडिकुलर डाला। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ओडी को कैसे लिखेंगे हम लोग, ए डॉट बी को क्या लिखते थे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, इसको लिखेंगे हम लोग मॉड ऑफ ए, और बी कॉस थीटा को हम लोग लिखेंगे ओ डी। मीन्स ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड क्या है, ओडी। ओडी का मतलब यहां पे क्या है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए, मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये आपका डॉट प्रोडक्ट होगा एक्चुअली। तो क्या सब हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने सीखा कि ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा बोलेंगे, बी का जब प्रोजेक्शन लेंगे ए पर तो वह आ जाएगा बी कॉस थीटा। जब बी कॉस थीटा को हम लोग ओडी लिखेंगे, ओडी क्या है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, मीन्स कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है ए वेक्टर एंड द प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर ऑन दैट वेक्टर, मीन्स वी कैन राइट दैट in dot product we can say it is the multiplication of a vector and projection of other vector on that vector। कहने का मतलब क्या हुआ कि सिंपल हम लोग समझते हैं कि यदि दो वेक्टर ए और बी है तो आप बी का प्रोजेक्शन ए पे ले लीजिए, तो ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए जो होगा वह डॉट प्रोडक्ट होगा। सेम वे में हम लोग ए से भी बी पे परपेंडिकुलर डाल करके ए का प्रोजेक्शन बी पे ले सकते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मतलब जिस एक वेक्टर लीजिए और दूसरे का उस पर प्रोजेक्शन ले लीजिए, उस दोनों को मल्टीप्लाई जब कर देंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। ये इसका एक फिजिकल मीनिंग है। मैथमेटिक्स में आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा, अभी हम इसको फिजिक्स तक ही कन्फाइन करके रखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो ए डॉट बी मीन्स मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये कॉस थीटा का मतलब क्या था, कॉस थीटा का मतलब क्या था, यहां से हम लोगों ने प्रोजेक्शन निकाल के बताया, अल्टीमेटली इसको एक स्टेटमेंट में भी लिखा गया है, इसको आप लोग ध्यान रखें, तो ये डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा। अब जरा सा आप देखिए कि मैंने बताया था आपको कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें 3 एक्सिस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स पे आई से हम लोग डिनोट किया था यूनिट वेक्टर मीन्स डायरेक्शन, वाई को जे से और जेड को के से डिनोट किया था। ईच एंड बोथ ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्सिस द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो सिंस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं, कंक्लूजन निकल के क्या आएगा कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। मीन्स जब आपको बोलेगा आई डॉट जे, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे एंड कॉस थीटा कितना है आई और जे के बीच में 90 डिग्री, तो कॉस 90 कितना होगा 0। इन द सेम वे
जे डॉट के कैसे लिखेंगे हम लोग? मॉड ऑफ के इंटू कॉस 90 डिग्री। इसमें भी कॉस 90 डिग्री जीरो, तो ये जीरो, और के डॉट आई मीन्स मॉड ऑफ आई इंटू कॉस 90 डिग्री इक्वल टू जीरो। मतलब क्या हुआ कि यदि कोई भी दो वेक्टर है इस तरीके से जिसके बीच का एंगल परपेंडिकुलर है, सॉरी या 90 डिग्री है, तो उस केस में कॉस थीटा ऑलवेज जीरो होगा। मतलब यदि दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उसका डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज ही जीरो होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग इसको कैसे समझते हैं। सपोज कीजिएगा एग्जाम्पल में लेते हैं, एक वेक्टर कैपिटल ए है, इसको हम लोगों ने डिनोट किया है ए आई प्लस बी जे, ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, और बी को रिप्रेजेंट किया है ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के। अब आपको ए डॉट बी निकालना है। यहाँ तो डायरेक्शन दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड भी है, तो कैसे निकालेंगे इसको? लिखिए इसे ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के डॉट ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के। अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले ए वन आई से इस एक्सप्रेशन के तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए वन ए टू कितना हो जाएगा? ए वन इंटू ए टू, और आई डॉट आई का मतलब आई और आई के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस पे होगा, तो कॉस 0 1, तो ए वन ए टू हो जाएगा, प्लस ए वन बी टू और आई डॉट जे कितना हो जाएगा? 90 डिग्री एंगल बनेगा आई और जे में, तो 0, प्लस इस टर्म को अगर इस टर्म के साथ करेंगे तो ए वन सी टू और आई डॉट के, इसके बीच भी एंगल 90 डिग्री, एक एक्स एक्सिस पे दूसरा जेड एक्सिस पे, तो ये भी 0। फिर देखते हैं, अब बी वन जे से कीजिए मल्टीप्लिकेशन, तो बी वन जे से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी वन ए टू तो हो जाएगा, लेकिन जे और आई है, तो जे है वाई एक्सिस पे और आई है एक्स एक्सिस पे, तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, तो ये भी टर्म 0, प्लस देखिए यहाँ पे बी वन बी टू, तो बी वन बी टू हो जाएगा, और जे डॉट जे, तो जे और जे दोनों एक्स एक्सिस दोनों वाई एक्सिस पे है, दोनों के बीच का एंगल 0, इसीलिए जे डॉट जे वन, तो बी वन बी टू हो जाएगा, प्लस इससे जब इस टर्म को करेंगे तो 0 होगा। सेम वे इससे आप कीजिएगा तो के डॉट आई 0 हो जाएगा, के डॉट जे वाले टर्म को कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन के डॉट के 1 होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा? C1 C2। तो यहाँ से ए डॉट बी की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ये एक एग्जाम्पल था। देखिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। A1 इंटू A2 मीन्स मैग्नीट्यूड हो, और मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड, B1 B2 मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड, C1 C2 मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जो आता है वो ऑलवेज एक स्केलर क्वांटिटी आता है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखेगा, डायरेक्शन नहीं होगा। इसीलिए इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने समझा। अब बुक को रेफर कीजिए, बुक में जा करके आप इस लेक्चर को समझने के बाद बुक को रेफर कीजिए। बुक में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, सिंपल प्रॉब्लम्स को बनाइए। फिर आगे की क्लास में हम लोग एक न्यूमेरिकल रखेंगे, एक क्लास, एक थ्योरेटिकल काइंड ऑफ क्लास और लेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, So in this class we discussed about dot product of the vectors. So you go refer some books if you have some books. First of all, go through the discussion that we have today, and on the basis of the concept that we have discussed here, you have learned here, you can refer to the book, you can solve some problems, you can practice. It is essential to go through the books in any cases. Don't feel that any lecture in the world will serve your purposes if you are not referring a book. So please refer the book.
any kind of book, I recommend कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एस.सी. वर्मा, वो आइए। होपफुली आशा करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। ऑलमोस्ट हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। एक क्लास बचा हुआ है जिसमें हम लोग लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद 2-3 वीडियो में अपलोड करूँगा प्रॉब्लम्स पे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्टिसेस क्या है, क्या क्या सोचते हैं हम लोग, उस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करता हूँ, आई एम वेरी मच मीन्स कॉन्फिडेंट यू पीपल आर means liking this kind of lectures, you are going through this kind of lectures। तो आप लोग स्टडी कीजिए, लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे। जब कभी भी लेक्चर को पढ़ते हैं, आप न्यू हैं आइए, अगर चैनल पे आपको लेक्चर अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले लेक्चर्स भी आपके नोटिफिकेशन में आते रहें। इस तरीके से अगले क्लास के लिए, और फॉर द बेस्ट, थैंक यू।